Good morning, everyone. And as we are doing our third chapter, public, private, and global enterprises, our today's topic is changing role of public sector. In this topic, we will learn that how, over the period of time, how the public sector changing its role in the economy. So, the public sector in India was created to achieve two types of objectives: to speed up the economic growth of the country, and second one is to achieve a more equitable distribution of income, wealth among people. पब्लिक सेक्टर जो है वो टू मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्टार्ट किया गया था. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीडन अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एंड सेकेंड इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए एंड वेल्थ अमंग द पीपल. Its first point is development of infrastructure. At the time of independence, India suffered from acute shortage of heavy industries such as engineering, iron and steel, oil refineries, heavy machinery, etc. Because of huge investment requirement and long gestation period, private sector was not willing to enter these areas. So the duty of development of the basic infrastructure was assigned to the public sector, which is discharged quite efficiently. So when India got independence, इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज़ जो थी उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, जैसे कि इंजीनियरिंग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनरीज, हैवी मशीनरी. बिकॉज इनकी शॉर्टेज इस वजह से थी, एक तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड है दैट वाज वेरी लॉन्ग और उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी. तो इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था दे आर नॉट विलिंग टू एंटर दीज एरियाज़. वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे. तो जो ये ड्यूटी प्रोवाइड की गई हैवी इंडस्ट्रीज़ की, ये प्रोवाइड की गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, एंड सो दैट दे विल डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़ क्वाइट एफिशिएंटली, ताकि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफ़िल कर पाएँ प्रॉपरली. नेक्स्ट इज़ रीजनल बैलेंस. Most of the development was limited to the few areas like port towns for providing employment to the people and for acceleration the economic development of backward areas. Many industries were set up by public sector in those areas. रीजनल बैलेंस में ये है कि पहले जो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी वो कुछ एरियाज़ तक ही लिमिटेड थी, जैसे कि पोर्ट्स और या फिर टाउन्स, क्योंकि पोर्ट से जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट विल बी इजी, एंड टाउन्स क्योंकि मार्केट आसपास होती हैं, तो ऐसे ही जो एरियाज़ हैं वहीं तक वो लिमिटेड थे. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ ने कुछ ऐसे एक्यूट एरियाज़ पे या बैकवर्ड एरियाज़ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की ताकि जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, प्लस जो रीजनल इम्बैलेंस है वो उसको भी, जो गैप है उसको भी वो कवर कर सके. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. And in certain industries like electrical power plants, natural gas, petroleum, etc., huge capital and large base are required to function economically. Such areas were taken up by the public sector. Economies of scale, जिन particular products की large huge amount पे production की जाती है, जैसे कि electrical power plants, natural gas, petroleum, etc., and they also required huge capital and huge base. So और ये इकोनॉमिकली फंक्शन कर पाएँ, तो ऐसे एरियाज़ को भी जो पब्लिक सेक्टर है उन्होंने ग्रैप्स कर लिया. दे वर टेकन अप बाय द पब्लिक सेक्टर. कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. ऐसे एरियाज जिसमें कि मोनोपोलीज क्रिएट की जा सकती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैव टेकन दैट एरिया सो that the private sector will not be able to exploit the customers. These enterprises were also established to provide competition to the private sector, and they are also giving
competition to the private sector and to check their monopolies and restrictive trade practices so that जो भी monopolies हैं क्रिएट की गई प्राइवेट सेक्टर से ये उनको भी compete कर पाएँ प्लस जो उनके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन पर भी restrictions लगा सकें. Next is import substitution. Public sector were also engaged in production of capital equipments which were earlier imported from the other countries. पब्लिक सेक्टर बहुत सारे कैपिटल इक्विपमेंट्स में भी इंगेज्ड है जो कि पहले इंपोर्ट किए जाते थे अदर कंट्रीज़ से, और जैसे कि STCs हैं, MMTCs हैं, दैट इज़ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एंड मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ को इंक्रीज़ करने में. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया गया है, असाइन किया गया है पब्लिक सेक्टर को, बट जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर की वो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, विच फोर्स गवर्नमेंट टू डू री थिंकिंग ऑन द पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि गवर्नमेंट को री थिंक करने पे मजबूर करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए. नाउ देयर आर सम रिफॉर्म्स फॉर द पब्लिक सेक्टर. In the Industrial Policy 1991, the Government of India introduced 4 major reforms in the public sector. Public sector reforms में 1991 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, there are some reforms done in that. First is reduction in the number of industry reserved for the public sector. रिडक्शन की गई कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो कि पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी. इट रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8. इनके जो नंबर हैं वो 17 से 8 कर दिए गए. एंड इन 2001 इट वॉज रिड्यूस फ्रॉम 8 to 3. These 3 industries are atomic, arms and rail transport. Then memorandum of understanding. Under this, government lays down performance target for the public sector and gives greater autonomy to hold the management but held accountable for the specified result. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या किया गया, उनको एक परफॉर्मेंस टारगेट प्रोवाइड कर दिए गए एंड गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई, बट दे हैव टू अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट. बट उनको जवाबदेही भी थे वो जो भी उनके रिजल्ट होंगे इन फ्यूचर. डिसइन्वेस्टमेंट. Equity share of the public sector enterprises was sold to the private sector and the public. डिसइन्वेस्टमेंट की गई गवर्नमेंट के थ्रू, उनके जो शेयर्स थे प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिए गए. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूव मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन. इसमें क्या था कि ये इसीलिए किया गया प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड क्योंकि इससे उनकी जो मैनेजरियल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी, प्लस जो फाइनेंशियल भी उनको हेल्प मिलेगी. रिस्ट्रक्चरल एंड रिवाइवल. ऑल द पब्लिक सेक्टर 6 यूनिट्स वर रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकन्स्ट्रक्शन. जो भी 6 यूनिट थी पब्लिक सेक्टर की या जो भी इंडस्ट्रीज जो थी एंटरप्राइजेज जो थी, दोज हु आर इन लॉस, दे आर रिकन्स्ट्रक्टेड under the Board of Industrial and Financial Reconstruction. Unit which were potentially viable were reconstructed and which couldn't be revived were closed down by the board. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि लॉस में चल रही थी और जिनका जो था रिवाइवल किया जा सकता था, दे आर रिवाइव्ड और रिकन्स्ट्रक्टेड, एंड दोज देयर इज़ नो पोटेंशियल सीन in them, they are finally closed down by the government. So this is all about our chapter number 3. As I have already told you that global enterprises and PPP, that is public private partnership, is excluded from our syllabus. So this is all for our chapter number 3. Thank you.